are going to discuss Indigo today. The story Indigo is taken, it's basically an excerpt written by Louis Fisher on the life of Mahatma. The life of Mahatma Gandhi is the main book. And Louis Fisher, about the author, if we learn, he was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. And he made his career as a journalist and wrote for New York Times, Saturday Review, and many other European and Asian publications. So he was also the member of faculty at Princeton University. And ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, this is an excerpt from the life of Mahatma Gandhi, written by him. So Indigo, does anyone know about Indigo? What is Indigo? Any idea? Ma'am, it's a dye. Ma'am, it's a dye used in textile industries. Yes. It's a dye which is used in textile industry. Well, so let's read about the story. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will let you know. I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. So baat hai 1917 ki, and at that time, Louis Fisher was, following. He was a disciple of Gandhi. So 1942 में he went to meet Gandhiji in his ashram in Sevagram, and that was in central India. And I will tell you how it happened. तो वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि सब कैसे हुआ. और 1917 की बात है कि जब मेरे को लगा कि आई शुड अर्ज, बिकॉज मेरे को अंदर से आई डिसाइडेड टू अर्ज, मैंने डिसाइड करा कि कुछ भी हो मुझे इन लोगों को अपने कंट्री से बाहर निकालना है, ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से बाहर निकालना है. He had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party, Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran, and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas, near the kingdom of Nepal. So what happened was, Mahatma Gandhi had gone to Lucknow to attend the annual convention of Indian National Congress, जो December 1916 में हुआ था. Now there were 2,301 delegates, around 2,301 delegates थे, और बहुत सारे visitors थे वहां पे जो उनसे वहां पे कांग्रेस सेशन में को अटेंड करने आए थे. During the proceedings, Gandhi recounted, और गांधी याद करते हुए बताते हैं कि सब चल रहा था वहां पे, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कन्वेंशन चल रहा था. अब पेजेंट केम अप टू मी, तभी एक मजदूर आया मेरे पास, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट, मतलब जैसे इंडिया में पुराने मतलब पुअर से, गरीब से, एमासिएटेड मींस बहुत जो भुखमरी में रह रहे हो, बहुत स्टार्वेशन में जी रहे हो, ऐसा लेबर था वो. एंड ही केम, और उसने आके मुझसे बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट. तो उसने कहा, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चाहता हूँ कि आप चंपारण आए, हमारे डिस्ट्रिक्ट विजिट करें. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. और ये जो था, ये गांधी ने जब इस चंपारण के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था. He never knew about this place. तो उन्होंने फिर जब उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये हिमालयाज के तलहटी में एक छोटा सा, नेपाल के पास में बिल्कुल एक गांव था, छोटा सा चंपारण. It was a small district in those times. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. और एक पुरानी अरेंजमेंट, एंशिएंट मींस काफी टाइम से ये अरेंजमेंट चल रहा था कि चंपारण के जो पेजेंट्स थे, they were sharecroppers. Now, sharecroppers were more like tenants. So, Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. और राजकुमार शुक्ला भी ऐसा ही एक टेनेंट था, ऐसे ही एक शेयर प्रॉपर था. He was illiterate, वो पढ़ा लिखा नहीं था, but he was resolute. लेकिन अपनी जिद का पक्का था. जो सोच लेता था उसे वो करके रहता था. He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. और वो कांग्रेस सेशन को अटेंड करने आया था, और he came there because किसी ने उसको बोला कि वहां पे जाके लोगों से बात करो तो शायद हमारी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो सके. बिहार का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, दैट वाज डूइंग ग्रेव इनजस्टिस टू दीज शेयर प्रॉपर्स. वहां के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने आप को बिल्कुल किंग की तरह समझते थे. और किसी ने शायद उसको, राजकुमार शुक्ला को, ये बोला कि तुम जाकर के गांधी से मिलो. सो Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. So गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि देखो मुझे अभी कानपुर जाना है, वहां पे मेरी अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद मुझे देश में और भी कई जगह जाना है. तो शुक्ला जो थे वो, उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा गांधी जी का. जहां जहां गांधी जी जाते थे वो उनके पीछे पीछे उन्हें फॉलो करते थे. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और काफी दिन इस तरह से अपने सारे अपॉइंटमेंट्स पूरे करके, अपनी पूरी टूरिंग करके, जहां जहां उनको देश में जाना था, लोगों से मिलना था, वो सब करने के बाद जो वापस अहमदाबाद पहुंचे, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम.
शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। हफ्तों हो गए थे उसने गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। गांधी जी जहां जाते थे वो उनके पीछे पीछे पहुंच जाता था। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। उसकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी हर बार, प्लीज आप डेट फिक्स कर दीजिए, आप बता दीजिए कि कब आप चंपारण आएंगे। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी जी जो थे he was pretty much impressed कि भाई ये किसी भी तरह पीछा नहीं छोड़ा, मतलब प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है और ये आदमी जब इसका काम नहीं होगा जब तक शायद ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फाइनली ही सेड कि ठीक है, मुझे फलानी फलानी डेट पे कलकत्ता आना है और तुम वहीं आके मुझसे मिलो और वहां से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। Months passed, Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. और कई महीने गुजर गए। जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले शुक्ला वहीं पे ही वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, मतलब जमीन में वो ऐसे ही अपने नीज बेंड करके जैसे बैठते हैं ऐसे बैठा हुआ उनका वेट कर रहा था। जब गांधी वहां पहुंचे तो उनके आने से पहले उनको वो दिख गया। Then the two of them boarded a train. So he waited till Gandhi was free. गांधी जी अपना कलकत्ता में जिस काम से गए थे, जिन लोगों से मिलने गए थे, उन सबसे मिले जुले बात हुई सब। और उसके बाद गांधी जी ने कहा चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. और फिर उन दोनों ने ट्रेन पकड़ी बिहार के लिए, वहां से पटना की ट्रेन पकड़ी। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party and of India. और वहां पे उनकी मुलाकात हुई राजेंद्र प्रसाद से, जो कि एक लॉयर थे और वो बाद में आगे चल करके कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष बने और साथ में इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their masters to help the indigo sharecroppers. So राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उस समय शहर से बाहर गए हुए थे, लेकिन उनके सर्वेंट्स जो थे वो शुक्ला को जानते थे, क्योंकि शुक्ला एक पुअर योमैन, एक गरीब मजदूर था जो उनके मास्टर को, उनके मालिक के पास आकर के उन्हें परेशान किया करता था। उनको पेस्टर करना मतलब किसी को बहुत ज्यादा मिन्नतें करना, कन्विंस करने की कोशिश करना कि प्लीज प्लीज आप शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करिए। So they let him stay on the grounds with his companion, Gandhi, whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well. So उन्हें लगा कि ठीक है, मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है, और ये वो टाइम था कि जब लोग होटलों में जाकर के रहना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जिसके यहाँ जाते थे उसी के घर रुक जाते थे रात में, अगर लेट नाइट हो गया रुकना पड़ रहा है तो ऐसे ही उनको पता था कि ये तो आता रहता है हमारे मालिक के पास। उनको पता था कि शुक्ला कौन है क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, मालिक तो नहीं है, पर तुम यहाँ बाहर जो ओपन एरिया है घर के बाहर का, तो वहां पे सो सकते हो अपने कंपेनियन के साथ में। गांधी जी को देख करके उनको लगा कि वो भी शुक्ला के साथ के ही कोई उन्हीं के तरह के मजदूर होंगे, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, तो उनको भी उसी के साथ ठहरा दिया गया और गांधी जी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कुएं से पानी आप नहीं निकालेंगे। Let some drops of water from his bucket pollute the entire source. ये वो टाइम था जब अनटचेबिलिटी वॉज एट इट्स पीक। लोग अपने कुएं से किसी भी अनटचेबल को पानी भी नहीं निकालने देते थे, और शुक्ला की सिचुएशन यहाँ पे ऐसी ही थी कि ही वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। तो उन्होंने उसके साथ में गांधी आए थे, तो गांधी को भी उन्होंने सेम इंस्ट्रक्शन दिए कि आप इसमें से कुएं से पानी नहीं निकालेंगे। तो लुई फिशर बताते हैं कि उन लोगों को शायद ऐसा लगता था कि अगर कोई अनटचेबल उनकी कुएं से पानी निकालेगा तो उसकी वजह से शायद अगर कुछ बूंदे पानी की उस बकेट से वापस गिर गई ना कुएं में, तो मे बी इट विल पोल्यूट द एंटायर सोर्स। बट उन्हें कैसे पता लगता कि गांधी वॉज नॉट अनटचेबल? Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. So गांधी जी जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर पहले जाएंगे, वहां रुकेंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। To obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. उन्होंने सोचा कि शुक्ला जो है मुझे पूरी बात पता नहीं सही से बता पा रहा है या नहीं, लेकिन शेयर क्रॉपर्स की समस्या में कुछ ना कुछ तो था ऐसा जो गांधी को लगा कि हमें वहां जाना चाहिए। तो उन्होंने रास्ते में मुजफ्फरपुर रुकने का फैसला किया और मुजफ्फरपुर में उनको लगा कि वहां पे पहुंच करके वो पहले और लोगों से भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts Colleges, Muzaffarpur. तो प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको वो मुजफ्फरपुर में रहते थे, तो गांधी ने उनको भी टेलीग्राम भेज दिया। उनसे इससे पहले वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में उनकी मुलाकात हुई थी। Now the train arrived at midnight, 15th April 1917. 15th April 1917 को आधी रात को जब ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची तो कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in the government school. So कृपलानी जो थे वो स्टेशन पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वेट कर रहे थे गांधी जी का। गांधी जी वहां पे प्रोफेसर मलकानी जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, उनके घर 2 दिन रहे। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. है ना? गांधी जी कहते हैं कि मेरे जैसे इंसान को अपने घर में रखना बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात थी उन दिनों, और वो इसलिए क्योंकि प्रोफेसर मलकानी जो थे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते थे, और गांधी जी जो थे वो
वो उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, जो कि प्रोफेसर मलकानियो के बॉस थे इन अ वे, अगर देखा जाए तो. सो so Gandhiji says कि for a government professor to harbor a man like me in smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule. So जो छोटी छोटी लोकेलिटीज थे, छोटे शहर थे, कस्बे थे, गांव थे, वहां के लोग जो थे वो फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं घुसना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें किसी भी तरह से ज्यादा परेशान करे, हैरास करे. तो लोग जो थे, जो लोग फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, लोग उनसे भी डिस्टेंस बना के रखते थे. ऐसे में गांधी जी को अपने घर में रखना प्रोफेसर मलकानी के लिए बहुत बड़ी बात थी. So the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. तो गांधी जी के आने की खबर और क्यों आ रहे हैं, उनका मिशन क्या है, ये बात मुजफ्फरपुर से चंपारण तक बहुत तेजी से फैली. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance. और चंपारण से sharecroppers जो थे वो दूर दूर से आने लगे. And they began arriving. वो कोई पैदल आ रहा है to buy their convenience, by conveyance to see their champion. तो जिसको जो रास्ता मिला, जो जैसे आ पाया, कोई बग्गी पे, कोई टांगे पे, कोई बैलगाड़ी पे, कोई पैदल चला रहे, हर कोई जो था वो चंपारण पहुंचने लगा कि गांधी आ रहे हैं, गांधी आ रहे हैं यहाँ पे. ये खबर जो थी जंगल में आग की तरह चंपारण तक फैल गई. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो इतने सारे लोग उनको देखने आए थे कि आखिर ये कौन है गांधी जो हमारे लिए आया है, जो हम शेयर क्रॉपर्स की हेल्प के लिए यहाँ पे आया है. बहुत सारे लोग दूर दूर के गांव से, कस्बे से, जहां जहां तक शेयर क्रॉपर्स थे, वहां वहां से लोग जो थे वो चंपारण पहुंचने लगे. मुजफ्फरपुर के लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. दे फ्रीक्वेंटली represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी से मिले और गांधी जी को बताया कि वो लोग अक्सर जो है शेयर प्रॉपर्ट्स के जो केसेस होते हैं उनको कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं. और उन्होंने ये भी बताया कि वो कितनी फीस चार्ज करते हैं. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. तो गांधी जी ने बहुत ही उनको पहले छिड़का, बहुत डांटा उन लॉयर्स को कि तुम लोग इतने गरीब शेयर प्रॉपर से इतनी बड़ी बड़ी फीस ले रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए. एंड देन ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हम लोग को लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए. ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कुछ खास फायदा नहीं होता. ये पेजेंट्स दे आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन. वैसे ही इनको इतना ऑप्रेस करके रखा हुआ है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने, ये इतना डरे और घबराए हुए हैं. लॉ कोर्ट्स तो इनके लिए यूजलेस है. द रियल रिलीफ फ्रॉम फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. इनके लिए असली रिलीफ ये होगा कि ये उस डर से आजाद हो सके. Now, most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. जितनी भी एरेबल लैंड थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, इट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स. चंपारण की जितनी भी जमीन थी, जितनी भी फर्टाइल लैंड थी, वो बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइडेड थी. काफी बड़े बड़े एस्टेट्स थे. एंड दीज एस्टेट्स वर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन. जो अंग्रेज यहाँ पे रहते थे वो लोग इन एस्टेट्स के ओनर्स थे. एंड दे वर वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स. और यहाँ पे काम करना, जो खेतों में काम करना होता है, वो काम जो था वो इंडियन टेनेंट्स का था. Chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. So, यहाँ की जो chief commercial crop थी, जो that was indigo. और ये landlords जो थे, ये tenants को compel करते थे कि जितनी land है, उसके 3/20 मतलब कि around 15% land पे आपको indigo ही grow करनी है. और ये इंडिगो जब पूरी ग्रो हो जाएगी, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, तो सारी की सारे इंडिगो आपको एज ए हार्वेस्ट, मतलब एज ए रेंट हमें सरेंडर करना है. आपको हम पूरा कोई पैसा नहीं मांग रहे, ठीक है. और ये जो इंडियन टेनेंट्स थे या इंडियन मजदूर जिसे आप कह सकते हो, दे वर लैंडलेस फार्मर्स. लोग लैंडलेस कैसे हो गए थे और कैसे ये जमीनें जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी? डज एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट इट? Should I share? Yes, ma'am. Okay. There was a time when most of the fertile land in India was with, of course, with Indians only. Indian farmers थे, Indian landowners थे. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी कि इरिगेशन वाज नॉट इजिली अवेलेबल. अपनी क्रॉप्स को समय समय पे जो पानी देना होता है, जो खाद देनी होती है, जिन चीजों की जरूरत होती है, वो सब चीजें इजिली अवेलेबल नहीं थी. तो एज अ रिजल्ट द फार्मर वाज डिपेंडेंट अ लॉट अपॉन नेचुरल फोर्सेस. बारिश आ रही है, सही टाइम पे आ रही है, तो क्रॉप्स बहुत अच्छी हो रही है. कभी टाइम पे बारिश नहीं आई, सूखा पड़ गया, लेट आई बारिश, कोई प्रॉब्लम हो गई,
तो आपकी पूरी फसल खराब हो जाती थी। कभी कभी पूरी फसल तैयार है, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है, और अचानक बारिश आ गई, सारी फसल खराब हो जाती थी। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स थी पहले के फार्मर्स के साथ में। फार्मिंग में ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। लेकिन आपकी पूरी फसल 6 महीने 8 महीने जो आपने मेहनत करके उसको तैयार किया, उसको उस पर आप मेहनत कर रहे हो, और 6-8 महीने बाद अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि फार्मर के घर में खाना नहीं खाएगा कोई, या उनके घर में अगर बच्चों की शादी होनी है तो वो शादी टल जाएगी। जो भी घर की जरूरतें हैं, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो एज इट इज रहेंगी। तो फार्मिंग वॉज नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस इन आई मीन मिडिवल इंडिया, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे विलेजेस थे, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कैनाल्स नहीं थे, जहाँ पे रिवर्स का पानी जो था वो कभी तो फ्लड्स आ जाते थे, कभी ड्रॉट्स आ जाते थे। तो फार्मर्स यूज टू सफर अलॉट। और फिर ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि जो गांव का मनी लेंडर होता था, जो जिसके पास पैसा बहुत होता था, वो उसके पास जाते थे, उससे लोन लेते थे कि भाई ठीक है अभी लोन दे दो, हम जब फसल आएगी इसको बेच के फिर अगले अगले उसमें टाइम में चुका देंगे। लेकिन अगर ये चीज 2-3-4 साल कंटिन्यू हो जाती थी, तो बहुत से फार्मर्स इतने कर्जदार हो जाते थे कि अल्टीमेटली वो जो मनी लेंडर था वो जमीन जब्त कर लेता था। एक तरह से वो अपने लिए रख लेता था उसको, कि भाई ठीक है अब तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो और तुम इतना कर्जा ले चुके हो, तो यू हैव टेकन मोर देन द कॉस्ट ऑफ योर लैंड, सो नाउ दिस लैंड इज माइन। और ये सब प्रॉपर कागज वगैरह, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके ये मनी लेंडर्स करते थे। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते थे कि टाइम टू टाइम उनकी जमीनें जो है वो कम होते होते कई बार वो बिल्कुल लैंडलेस फार्मर्स भी बन जाते थे। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने हमें बहुत लूटा, हमारे से बहुत पैसे भी कमाए, प्लस उनके पास अदरवाइज भी काफी पैसा था जब वो इंडिया आए थे, क्योंकि वो जगह जगह से लूट रहे थे। तो इंडिया जब वहां यहाँ पे आए तो उनको लगा कि यार यहाँ जमीन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो व्हाई नॉट बहुत से लोग जो थे वो मनी लेंडर्स या लैंडलॉर्ड्स बन गए। उन्होंने गांव में जाकर बड़ी बड़ी एस्टेट्स बना ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंग्लिशमैन जो थे इनसे मेहनत नहीं होती थी, धूप में काम नहीं होता था। तो अल्टीमेटली जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स थे वो इनके यहाँ जाकर के मजदूर बन जाते थे। वो कहते थे कोई बात नहीं, आप जमीन हमें दे दो, हम उसको जो हम रेंट पे दे दो हमें, हम उस पे खेती करेंगे, सब काम करेंगे, और एंड ऑफ द जब हार्वेस्ट होगा, जब पैसा आएगा तो हम आपको रेंट दे देंगे। तो रेंट तो क्या ही मिलेगा, क्योंकि ऑल डिपेंड्स, कभी फसल अच्छी हो रही है, कभी खराब हो रही है, कभी किसान के घर में ही कुछ खाने को नहीं है, तो जो ग्रो कर रहा है वो अपने पेट ही भर पा रहा है सिर्फ। तो बहुत सारी चीजें होती थी। तो एज ए रिजल्ट उन्होंने ये चीज कर ली थी कि ठीक है, जमीन तुम जितनी भी रेंट पे ले रहे हो उसके 15% पे इंडिगो ग्रो कर दो। और इंडिगो जो थी उसका पैसा मार्केट में बहुत अच्छा मिलता था। तो एज ए रिजल्ट दैट वाज द इजीएस्ट थिंग कि तुम ग्रो करो, जब इंडिगो ग्रो हो जाएगा तो वो एज ए हार्वेस्ट हम ले लेंगे, वो हमारा रेंट है। बाकी की जमीन पे 85% लैंड पे आप जो मर्जी आप उस पे ग्रो करो, आप उसको बेचो, आप उसको खाओ, दैट इज योर चॉइस। और ये सब एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता था। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा नहीं था कि 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था। दे वुड टेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेनी ईयर्स, और टाइम टू टाइम उसको रिन्यू करते रहते थे वो, ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। तो एक बार जो टेनेंट बन जाता था वो इन अ वे जैसे कहते हैं ना बॉन्डेड लेबर हो गया, कि फ्री में खेतों की जुताई करेगा, काम करेगा खेतों को, उसको पूरी तरह से पूरी मेहनत करेगा उसे ग्रो करने के लिए। और एंड ऑफ द टाइम जब पूरी हार्वेस्ट के लिए देखेगा तो जो भी मिलेगा उसी में उसको गुजारा करना पड़ता था। और ड्रॉट्स और फ्लड्स जो थे वो दैट वाज अ रेगुलर स्टोरी। So presently the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अभी हुआ क्या था, जब ये 1917 की जबकि ये बात है, तो उस समय क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड्स जो थे वो, उन्हें पता लगा कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, मतलब लैब्स में कुछ केमिकल्स यूज करके दे हैव मेड सिंथेटिक इंडिगो। और ये इंडिगो का जो यूज था ये बेसिकली होता था कपड़ों को कलर करने में, ब्लू कलर की डाई होती थी और कपड़ों को कलर करने के लिए इसको यूज किया जाता था। नाउ जस्ट इमेजिन, जिस चीज को आप खेतों में ग्रो कर रहे हो, जिसमें आपको 3-4 महीने 6 महीने का टाइम लग रहा है इंडिगो ग्रो करने में, वही इंडिगो लैब में बहुत कम टाइम में बहुत सस्ते में बन रही है। टाइम भी कम लग रहा है, कॉस्ट भी कम आ रही है। तो आने वाले टाइम में जो नेचुरल इंडिगो है उसकी तो लाइफ वैसे ही खत्म, उसकी डिमांड वैसे ही खत्म हो जानी थी। और ये बात जो थी वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता लग गई थी। So they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, अब क्योंकि उनको पता लग गया था। और ये बात जो पेजेंट्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर इलिटरेट, वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते, और पढ़ते भी तो शायद रीजनल लैंग्वेज का पढ़ते। जो इंटरनेशनल न्यूज जो है इंग्लिश पेपर्स में छपती थी वो पढ़ने के लिए वो लोग शायद इतने इक्विप्ड भी नहीं थे, तो उन्हें पता ही नहीं लगा। सबसे पहले ये बात लैंडलॉर्ड्स को पता लगी और उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि इस बार तो हमें इनसे इंडिगो खरीदने का फायदा नहीं, क्योंकि इंडिगो को बेच के हमें कुछ नहीं मिलने वाला मार्केट में।
तो व्हाट दे डिड वाज उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को बोला कि देखो अगर तुम लोगों को भी ये अरेंजमेंट कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगता, तुम सारी मेहनत करते हो और उसके बाद तुम इंडिगो हमें देनी पड़ती है, तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें इस अरेंजमेंट से फ्री कर देते हैं 15% के, तुम हमें एक्स अमाउंट दे दो। उनसे कुछ पैसा ले लिया एज पर द लैंड, कि जितनी भी लैंड है उसका रेंट उन्होंने ले लिया उनसे इन द फॉर्म ऑफ मनी, और उनसे कहा कि आज के बाद तुम इस 15% वाले अरेंजमेंट से यू आर फ्री। सो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक्सम टू द पेसेंट्स। और ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जिसमें 15% इंडिगो व्हिच इज अ कैश क्रॉप, वो उन्हें पूरी की पूरी उन्हें दे देनी पड़ती थी। तो ये चीज जो थी ये बहुत से पेसेंट्स को अच्छी नहीं लगती थी, उनको लगता था अगर जब मेहनत हम करें तो हम क्यों ना कमाएं। तो बहुत से लोगों को जब ये पता लगा कि उनको वो थोड़े से पैसे देकर के वो फ्री हो सकते हैं इस अरेंजमेंट से, देवर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप पैसा ले लो। जिनके पास भी पेजेंट्स के पास पैसा जमा था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने वो पैसे दे दिया और खुशी खुशी साइन कर दिया। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, जिन लोगों ने कहा कि नहीं हमें नहीं करना है, हमें तो ओके है, हम तो ये इंडिगो ही आपको देंगे एज ए रेंट, पैसे वैसे हम नहीं दे रहे, हमें ये अरेंजमेंट ओके है, हम वी आर फाइन विद इट। तो ऐसे लोगों के केस में लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने लॉयर्स एंगेज किए, सॉरी जो पेजेंट्स थे उन्होंने लॉयर्स एंगेज किए कि भाई हमारा जो लैंडलॉर्ड है या जो ब्रिटिश एस्टेट ओनर है वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड्स ने बदले में ठग्स को हायर कर लिया, गुंडों को हायर कर लिया इन लोगों को डराने धमकाने के लिए। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और ये सब कुछ चल ही रहा था, इतने में क्या हुआ कि जो पेजेंट्स थे, जो इलिटरेट पेजेंट्स थे, उन तक भी एक खबर पहुंच गई कि ये जो लैंडलॉर्ड्स ने गेम खेला है कि हम तुम्हें इस अरेंजमेंट से फ्री कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए खेला है कि सिंथेटिक इंडिगो बन चुकी है और इस साल मार्केट में इसकी कोई खास वैल्यू मिलने वाली नहीं है, या शायद इसकी डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में। तो वो लोग भी अपना पैसा वापस मांग रहे थे, उनको समझ आ गया था कि उनसे धोखे से पैसा लिया गया है। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और ये सारी टसल लैंड ओनर्स और टेनेंट्स के बीच में चल रही थी जिस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। सबसे पहले तो उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे करने की शुरुआत की। First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that he could give no information to an outsider, and Gandhi answered that he is no outsider. So, सबसे पहले जो थे गांधी जी, ही वेंट टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, वहां गए, वहां के सेक्रेटरी ने कहा कि देखिए आप एक आउटसाइडर हैं, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। एंड गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, आई एम नो आउटसाइडर टू दिस। सो नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तेरहो डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर अगला जो स्टेप था, गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो थे तेरहो डिवीजन के, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो था वो तेरहो डिवीजन में आता था, तो तेरहो डिवीजन के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उन्होंने उनसे मिले, उनसे बात करी। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तेरहो। तो गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर ने सीधे सीधे उनको धमकी दी कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप तेरहो छोड़ के अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एंड यू आर नोबडी टू गेट इनटू दिस, आपको कोई हक नहीं है सबके बीच में घुसने का। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। लेकिन गांधी जी भी अपनी जिद के पक्के थे, उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाता, और बजाय वापस जाने के वो वहां से मोतिहारी चल दिए, जो कि उन दिनों चंपारण की कैपिटल हुआ करती थी। Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. सो गांधी जी जो थे जब चंपारण मोतिहारी के लिए चले तो बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ साथ चल पड़े। रेलवे स्टेशन पे अब वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत सारे लोग गांधी से मिलने के लिए आए थे, उनको वेलकम करने के लिए आए थे जब वो रेलवे स्टेशन पे उतरे। ही वेंट टू अ हाउस, वहां से वो एक घर गए और उन्होंने उसी घर को अपने हेडक्वार्टर बना करके वहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. और वहां पे एक रिपोर्ट आई कि कोई पेजेंट है, कोई मजदूर है जिसके साथ कुछ बदतमीजी की गई है, पास के ही गांव में किसी मजदूर के साथ कुछ मिसबिहेव किया गया है। सो गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने सोचा कि चलो देख के आते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगले दिन सुबह गांधी जी एक एलिफेंट की पीठ पे चढ़ करके चल पड़े मोतिहारी के लिए, मोतिहारी से उस गांव के लिए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अभी वो ज्यादा आगे पहुंचे भी नहीं थे कि तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया, उसने आगे आकर हाथी के आगे आकर उनको रोका और उनसे कहा कि आप अभी के अभी वापस शहर चलिए, आपके लिए कैरेज आया है, आपको इसमें अभी के अभी वापस चलना पड़ेगा। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उसकी बात मान ली। मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। अब मैसेंजर जो था वो गांधी जी को वापस उनके घर तक ले गया जहां पे वो रुके हुए थे, जिसको उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, और फिर वहां जाकर के उसने ऑफिशियल नोटिस उन्हें सर्व किया कि अभी के अभी आप चंपारण छोड़ दीजिए। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने भी रिसीट साइन कर दी
उस नोटिस को पढ़ा, रिसीव कर लिया कि हाँ भाई मैंने रिसीव कर लिया ये, और साथ साथ उसमें ये भी लिख दिया कि ही वुड डिसोबे, वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे. सो इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे. और जब उन्होंने नोटिस का जवाब लिखा कि ही वुड डिसोबे, वो नहीं मानेंगे इस ऑर्डर को, तो अगले दिन गांधी जी के लिए कोर्ट से समन्स आ गए कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है. All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. पूरी रात गांधी जी जागते रहे. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से आने के लिए कहा कि अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर के आओ. He sent instructions to the ashram. उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेजे कि इन केस अगर वो जेल चले जाते हैं तो आश्रम को कैसे रन करना है. He wired a full report to viceroy. और उन्होंने viceroy को भी पूरी रिपोर्ट सेंड की कि यहाँ पे क्या चल रहा था. Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. अगले दिन सुबह मोतिहारी का शहर जो था, जो टाउन था, it was black with peasants. Because the story is written by Louis Fisher. तो Louis Fisher was a white man, so let's understand this कि उसको इंडियंस और स्पेशली बिहार के लोग बहुत ही काले लग रहे थे. तो उसने उनको डिस्क्राइब करने के लिए इट वाज ब्लैक विद पेजेंट्स मींस हर जगह मजदूर ही मजदूर वहां पे भरे हुए थे. पूरा का पूरा मोतिहारी शहर जो था वो इट वाज लुकिंग ब्लैक. इतने सारे मजदूर वहां पे इकट्ठा हो गए थे. दे डिड नॉट नो, उनको गांधी का रिकॉर्ड नहीं पता था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया था. उनको सिर्फ इतना पता था कि देयर इज अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम. कोई है जो उनकी हेल्प करने आया है एंड ही इज इन ट्रबल विद अथॉरिटीज, और अथॉरिटीज जो उसको परेशान कर रही है. So their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation. तो उनका जो spontaneous demonstration था, मतलब किसी ने कॉल नहीं करा, किसी ने नहीं कहा कि इतने सारे लोगों को आना है या हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है, हमें गांधी को सपोर्ट करना है, बट अपने आप से ही हजारों पेजेंट्स जो थे वो कोर्ट हाउस के आसपास उन्होंने घेरा डाल दिया. आज वो ब्रिटिशर से डर नहीं रहे थे, उन्हें कोई घबराहट नहीं थी. दे वर नॉट स्केयर्ड ऑफ देम. वो सारे के सारे खुद कोर्ट हाउस के चारों ओर घेरा डाल के बैठे हुए थे. और ये पहली बार हुआ था कि जबकि सब लोग जो थे हैरान थे कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर से डर नहीं रहे थे. अदरवाइज ब्रिटिशर्स का लाठी चार्ज इतना भयानक होता था कि बहुत लोगों की लाठी चार्ज में ही डेथ हो गई. बहुत सारे लोग जब प्रोटेस्ट करने जाते थे तो इतनी लाठियां बरसती थी, सिर्फ लाठी लाठी से ही लोग मर जाते थे, इतनी बुरी तरह से इंजरीज होती थी. लेकिन आज बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के कहे, इतने सारे पेजेंट्स गांधी के सपोर्ट में खुद ही वहां पहुंच गए थे. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. Officials को लगा कि आज वो गांधी को कोर्ट तक नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन गांधी जी ने उनके साथ कोऑपरेट किया. He helped them regulate the crowd. उन्होंने क्राउड को रेगुलेट करने में भी उनकी हेल्प की. He was polite and friendly. उन्होंने बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली वे में उनसे बात की, ऑफिसर से, जो पुलिस ऑफिसर्स उनको लेने के लिए आए थे. But at the same time, he was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. लेकिन साथ साथ वो उन ब्रिटिशर्स को ये भी प्रूफ दे रहे थे, बिल्कुल कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे कि देख लो, आज तक लोग तुमसे डरते थे, बिना सवाल किए whatever you said people followed, but look at this, your might, your power, hitherto, यहाँ पे उसको चैलेंज मिल सकता है. यू नो, अभी तक लोग तुमसे डरते थे, बिना सवाल के तुम्हारी बातों को फॉलो करते थे, लेकिन अगर ये सारे इंडियंस इकट्ठे हो जाएं, दे कैन चैलेंज योर अथॉरिटी. फिर इनके सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो, बिकॉज दे वर एक्चुअली वेरी फ्यू इन नंबर्स. वी ऑल नो दैट. So the government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Government was baffled. Government को समझ नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हो गया. No, how come इतने सारे लोग गांधी के सपोर्ट में आ गए हैं? Prosecutor requested the judge. Prosecutor था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट की ओर से केस के लिए खड़ा हुआ था, फाइट कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था केस को. He said कि I think आज के ट्रायल को हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए. ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपनी अथॉरिटी से, अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे कि इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन गांधी को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा था. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी जी ने कोर्ट में कहा कि आप लोग डिले क्यों कर रहे हो, आपको जो करना है करो. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी पढ़ दिया कि हाँ मेरी गलती है, मैंने मना किया कि मैं कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा. ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो क्यों नहीं मान रहे उसको. ही सेड आई वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. तो गांधी ने कहा कि एक्चुअली आई एम इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मतलब मेरे दिमाग में जद्दोजहद चल रही है. ऑन वन हैंड मैं कोई बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता कि मैं लॉ ब्रेकर हूँ और मैं कानून नहीं मानता, या मैं कोर्ट को फॉलो नहीं करता, या कोर्ट के अगेंस्ट हूँ. मैं बिल्कुल कोर्ट और जजेस के और जस्टिस के लिए हूँ,
I totally want to be the law abiding citizen, but at the same time मैं यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस के लिए आया हूँ, इंसानियत के लिए मैं यहाँ अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनको भी छोड़ के नहीं जा सकता। और इसीलिए आई हैड टू डिसरिगार्ड द ऑर्डर, और इसीलिए मुझे अपने आपके ऑर्डर को मुझे डिसऑनर करना पड़ा, मुझे मना करना पड़ा कि मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं लॉफुल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं देता। आई फुली रिस्पेक्ट द ज्यूरी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जस्टिस। मैं लॉ को, कानून को पूरी तरह मानता हूँ, पूरी तरह ओबे करना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा एक और कानून है, विच इज द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, हमारी कॉन्शियंस, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। मैं उसको नहीं दबा सकता। मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मैं खुद को क्या जवाब दूंगा कि मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करने आया था और जस्ट बिकॉज की कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया मैं वापस चला गया, बिना उन लोगों की हेल्प किए, बिना उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किए। ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए क्या पेनल्टी है, मैं दूंगा। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused and the judge released him without bail. तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, हम अभी 2 घंटे की रेसेस पे जा रहे हैं और 2 घंटे बाद आकर के हम आपको आपका सेंटेंस देंगे, जो भी हमारा फैसला होगा हम 2 घंटे बाद सुनाएंगे, और इन 120 मिनट्स के लिए आपको जो है कुछ बेल का अमाउंट भरना होगा, तब आप बाहर जा सकते हैं। तो गांधी जी ने मना कर दिया, उनका मैं कोई बेल का अमाउंट नहीं भर रहा अभी, तो फाइनली जज ने कहा ठीक है, आप बेल भी मत दीजिए, आप जा सकते हैं। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. So, जब कोर्ट दोबारा बैठी, तो जज ने कहा कि अभी तो काफी समय लगेगा, अभी कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही मैं आपको अपना जजमेंट सुनाऊंगा। Meanwhile, आप आजाद हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked why. The senior lawyer replied, they had come to advise him and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो बिहार से इस समय जब उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स उनके सपोर्ट में आए थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत सारे जाने माने लॉयर्स आए थे बिहार से। उन सब ने गांधी के साथ डिस्कशन किया, उनसे पूछा कि व्हाट वुड, तो गांधी ने उनसे पूछा कि व्हाट वुड दे डू, आप लोग क्या करोगे अगर मुझे जेल हो जाती है। तो सब लोगों ने आपस में बात की और कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपकी एडवाइस करने के लिए आए हैं, हम आपकी हेल्प के लिए आए थे, अगर आप जेल चले जाओगे तो कोई है ही नहीं जिसे हमें एडवाइस करना है, हम भी वापस घर चले जाएंगे। What about injustice to sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. Gandhi demanded. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be a shameful desertion. So, जब sharecroppers की बात हुई तो sharecroppers ने, गांधी ने उनसे पूछा कि what about injustice to sharecroppers? आप लोग यहाँ मेरे लिए आए हो या इन शेयर प्रॉपर्स के लिए आए हो? हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं? वी आर फाइटिंग फॉर इनजस्टिस अगेंस्ट टू द शेयर प्रॉपर्स। तो लॉयर्स जो थे दे विड्रू टू कंसल्ट, उनका ठीक है हम थोड़ा आपस में डिस्कशन कर लें, बात करके फिर हम आपको बताते हैं। तो उनका जो आपस का डिस्कशन हुआ उसमें राजेंद्र प्रसाद ने उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड द अपशॉट्स ऑफ देयर कंसल्टेशंस इज इक्विवेलेंट टू मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उन्होंने लिखा है, नोट करा, और वो लिखते हैं दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स, उन्होंने आपस में बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि गांधी वाज अ टोटल स्ट्रेंजर, वो इन सब के लिए जेल जाने को तैयार है, इन सब पेजेंट्स के लिए वो खुद जेल जाने को तैयार है। ऑन द अदर हैंड हम वो लोग हैं जो इन्हीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और जो क्लेम करते हैं कि हमने पेजेंट्स को सर्व किया है, हमने इनके केसेस लड़े हैं, हम चले जाएं घर। दिस वुड बी शेमफुल डिजर्शन, ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी हमारे लिए। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The Battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper, divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to put arrest. फिर वो लोग वापस गांधी के पास गए और उन्होंने बताया कि ठीक है, अगर आपको जेल हो जाती है तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल आ जाएंगे, हम कहेंगे हमें भी जेल में डाल दो, क्योंकि वी आर आल्सो गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस केस। सो बैटल ऑफ चंपारण इज वन। गांधी खुश हो गए, उन्होंने कहा अब तो चंपारण का बैटल हम जीत लेंगे। Then he took a piece of paper, उन्होंने एक piece of paper लिया, पूरे ग्रुप को पेयर्स में डिवाइड करा और ऑर्डर लिखा कि अगर उनको जेल होती है तो कैसे एक के बाद एक पेयर जाकर के कोर्ट अरेस्ट अपने आप को कराएगा कि ठीक है हम सरेंडर कर रहे हैं, आप हमें भी जेल में डाल दो।
Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. So, उसके कई दिनों बाद गांधी के पास एक रिटन कम्युनिकेशन आया, एक लेटर आया मैजिस्ट्रेट का, जिसमें उसने मैजिस्ट्रेट ने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि उनके अगेंस्ट जो केस था दैट हैज बीन ड्रॉप्ड. अब कोई केस नहीं है उनके ऊपर. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ. पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी. एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन द विक्ट्री ऑफ दिस बैटल ऑफ चंपारण. तो बाकी का चैप्टर फिर हम मंडे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बिकॉज चैप्टर तो अभी काफी लंबा है, वोंट बी एबल टू फिनिश इट इन वन गो, तो विल फिनिश इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है. सी यू देन. Thank you.